Okay, so I just covered the background of the case study that we want to look at. So lecture के अंदर हम बात कर रहे थे कि we were looking at stakeholders in a requirement engineering process and what we can think about that from the perspective of this case study is कि let's take a look at it from this perspective. If I ask you कि were the players stakeholders in this sense. Obviously, they should have been, and they were stakeholders in the actual game. लेकिन अब वो जो navigation system जो produce हो रहा है as a byproduct of the game, उसके अंदर how are we going to consider the players? So Niantic collected 30 billion images from your Pokemon Go players to build a navigation system that is now being used by an entirely other project जो कि delivery robots की navigation setup करने के लिए इस्तेमाल होगा. Players did not know that this would happen, so that is why it is such big news right now कि वो सारा का सारा डेटा जो कलेक्ट हो रहा था, all of that data is going to be put towards another application, and players were not told about this. So should your players have been on your stakeholder list in 2016, and what requirements would they have followed if they were? Okay. And we kind of know, we kind of know that they weren't because article का premise ही basically ये है कि this was like a surprise because uh, maybe obviously they were collecting the data क्योंकि वो किसी ना किसी particular जगह के ऊपर इस्तेमाल करने का सोच ही रहे थे, but probably even they did not have it in their mind कि वो food delivery system के लिए अंदर उनका कोई collaboration setup हो जाएगा जिसके अंदर वो इसको इस्तेमाल कर सकेंगे. So uh, but why did they not put the users on the stakeholders list? So I could ask you this kind of a question in a quiz, and you would then kind of state के what was the issue जिसकी वजह से वो वाले यूजर्स इस पर्सपेक्टिव से स्टेक होल्डर लिस्ट के अंदर, और अगर उनको स्टेक होल्डर लिस्ट के अंदर लेना होता तो व्हाट हाउ डू यू टेक देम in as stakeholders in this particular context. So question answer to ye hai कि they were not on the stakeholder list, and secondly they were not on the stakeholder list is because uh, like a decade ago and even to a great extent even now, जितनी भी आपकी big tech companies हैं, they have not had a great track record in disclosing to users, and even with your new AI bots, chat GPT और ये सारे, nobody has a great track record on how the data that is going into them, starting from your social media apps, earlier social media apps आपकी Facebook और ये सारे, वो सारे के सारे बेसिकली आपका डेटा ही कलेक्ट कर रहे होते थे, एंड ऑल ऑफ देम हैड दिस लॉन्ग टर्म विजन इन माइंड कि इवेंचुअली इसको एड्स के सिस्टम्स और इस तरह के सिस्टम्स में इस्तेमाल करने शुरू हो जाएंगे. तो नंबर वन, देयर हैजंट बिन दिस ट्रेंड ऑफ हैविंग अ डिस्क्लोजर सिस्टम जहां पर आप यूजर को बताओ, या अगर वो डिस्क्लोजर सिस्टम होता भी है तो वो इस किस्म का होता है कि यूजर्स के साथ बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंटली नहीं शेयर किया जा रहा होता कि दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन टू योर डेटा. कोई चीज़ लिखी होती है बट इट्स नॉट, इट इज़ वेरी फार फ्रॉम द यूजर्स माइंड के एट द पॉइंट दैट दैट एप्लीकेशन इज लॉन्च्ड. इट इज़ वेरी फार फ्रॉम द यूजर्स माइंड कि ये किस किस तरीके से इसका डेटा इस्तेमाल हो सकता है. सो दैट इज़ वाई ये बिकॉज ऑफ काइंड ऑफ ट्रेंड्स एट दैट टाइम एंड और एंड करंट ट्रेंड्स एज वेल वेयर बेसिकली ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन यूजर्स से काइंड ऑफ विद होल्ड की जा रही होती है, और यूजर्स फिर भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं. यूजर्स themselves are not very aware of what they're signing up for when they're using these apps. So basically the company could get away with not keeping people in as stakeholders. Eventually over time आपकी इस किस्म की इन्वायरमेंट बन सकती है, एंड थोड़ी सी इम्प्रूव हुई है ओवर टाइम, लाइक ओवर द लास्ट डेकेड और सो काफ़ी सारी इम्प्रूवमेंट्स आई हैं. इफ़ यू गो इनटू द ईयू एरिया, यूरोपियन एरिया, वहाँ पर और बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस आ गई हैं जो आपके दूसरे कंट्रीज के अंदर नहीं होती, अबाउट हाउ डेटा कैन बी यूज्ड. सो थोड़ा थोड़ा ट्रेंड बदल रहा है, लेकिन अभी तक लार्जली ट्रेंड आपका यही है कि यूजर्स का डेटा जो है
उसको इस्तेमाल करते हुए कोई बहुत ज़्यादा एथिक्स का, क्योंकि नोबडी इज टेकिंग केयर ऑफ द एथिक्स, तो किसी को फिर किसी के ऊपर कोई प्रेशर भी नहीं होता कि वो इसके ऊपर कोई काम कर रहे हो. सो यू कुड हैव अप्रोच दिस फ्रॉम मल्टीपल वेज, बट दिस इज वन वे ऑफ एक्सप्लेनिंग कि उन्होंने क्यों नहीं प्लेयर्स को स्टेक होल्डर लिस्ट के ऊपर डाला फॉर दिस पर्टिकुलर एंगल ऑफ द प्रोडक्ट, वेयर दे वर सेइंग कि वो जो डेटा है वो हमने किसी और जगह के ऊपर इस्तेमाल करना है. So we'll come back to this, but we want to look at a couple of other definitions ताकि फिर हम उसको लिंक कर सकें सेम एग्जांपल के साथ. We wanted to also look at functional and non-functional requirements. So functional requirements, and this is going to be a pet question in your quizzes in your exams. Probably after the most likely after your this course as well, because आप लोग अपने FYPs कर रहे होगे, किसी किस्म की भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहे होगे. पेट क्वेश्चन इज फंक्शनल रिक्वायरमेंट और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट के अंदर डिफरेंस क्या होता है, एंड काइंड ऑफ गिव एग्जांपल्स कि ये फंक्शनल है और ये नॉन फंक्शनल है. सो फंक्शनल रिक्वायरमेंट इज कि स्टेटमेंट कि आपके सिस्टम को करना क्या चाहिए बेसिकली. ठीक है, इट कैन इंक्लूड व्हाट द सिस्टम शुड नॉट डू टू रिफाइन स्कोप, बट बेसिकली इट इज स्टेटमेंट्स जो कि बता रही होती हैं कि आपके सिस्टम को क्या प्रोवाइड करना है, एंड किस तरीके से अगर ये वाला सिचुएशन हो तो उसने किस तरह रिएक्ट करना है और उसने किस तरीके से बिहेव करना है. सो वो सारी की सारी चीज़ों की डॉक्यूमेंटेशन इन अ सिमिलर वे, जो पीछे हमने एग्जांपल्स देखे हैं इफ यू रिमेंबर, तो उसके अंदर काफ़ी सारी नहीं बल्कि सारी स्टेटमेंट्स शैल स्टेटमेंट्स के फॉर्म के अंदर लिखी हुई थी कि द सिस्टम शैल डू दिस और द सिस्टम शुड शैल रिस्पॉन्ड लाइक दिस, अगर ये वाला सिचुएशन आता है. तो ये आपके सारे के सारे फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स जो हैं, इन अ वे यू कैन थिंक अबाउट दीज इज एज काइंड ऑफ के एक्चुअल पर्पस क्या है आपके सिस्टम का. तो वो सारे के सारे आपके अटेंडेंस नहीं हुई अभी. सो वो सारे के सारे आपके फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में आ जाएंगे. व्हेन यू स्टार्ट डॉक्यूमेंटिंग योर सिस्टम, अ लॉट ऑफ टाइम्स यू स्टार्ट, जब आप सोच रहे होते हो किसी प्रोजेक्ट के बारे में तो इमीडिएटली आप फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के बारे में ही सोच रहे होते हो. नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स आर लाइक कंस्ट्रेंट्स ऑन द सर्विसेज और फंक्शंस ऑफर्ड बाय द सिस्टम. सो फॉर एग्जांपल कि मेरा टाइम सेंसिटिव सिस्टम है, उसको इतने करना उसको ये है कि उसको पेशेंट की रिपोर्ट निकाल के देनी है, दैट वुड बी अ फंक्शनल रिक्वायरमेंट. और लेकिन अगर उसका कंस्ट्रेंट है कि ये कोई इस किस्म का मेडिकल सिस्टम है जो टाइम सेंसिटिव है, तो यू वांट टू से कि उसको विद इन, फॉर एग्जांपल यू वांट टू से कि विद इन 2 सेकेंड्स उसको रिपोर्ट जनरेट करके देनी है, या विद इन 24 आवर्स उसने, जो भी आपके ऊपर कंस्ट्रेंट है आपके पर्टिकुलर सिस्टम के ऊपर, दैट रिपोर्ट शुड बी जनरेटेड within that particular time या some particular constraint. किसी किस्म की भी आपकी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट हो सकती है. उसके हम कुछ एग्जांपल्स अभी देख लेते हैं. सो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स यू वुड काइंड ऑफ, यू शुडंट कॉल देम सेकेंडरी, बिकॉज वो होंगी तो आपका सिस्टम जो है वो एक वायबल सिस्टम बनेगा. बट दिस इज सोचते हुए प्रोबेबली यू कैन थिंक ऑफ देम कि आप उनको सेकंड लेवल के ऊपर सोच रहे होते हो, पहले आप फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के बारे में सोच रहे होते हो. एंड डोमेन रिक्वायरमेंट्स आर बेसिकली कंस्ट्रेंट्स ऑन द सिस्टम्स फ्रॉम द डोमेन ऑफ ऑपरेशन. कि कोई पर्टिकुलर आपकी कोई डोमेन की कोई रिक्वायरमेंट है कि इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर लेट्स से कि आपके ऊपर कोई लीगल वाला इशू है या कुछ इस किस्म का इशू है जिसको आपने हैंडल करना है. समटाइम्स यू कैन से कि इसको स्पेसिफिक डोमेन रिक्वायरमेंट बना दें. काफ़ी दफ़ा डोमेन रिक्वायरमेंट आप नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट की तरह ही हैंडल करके कवर कर रहे होते हो. बट बेसिकली मेन काइंड ऑफ रिक्वायरमेंट्स दैट you would be thinking of would be functional requirement and non-functional requirement. So इस ये हमने अभी एट लेंथ मैंने डिस्कस किया है. अगर आपकी टेक्स्ट बुक वाले एग्जाम्पल के अंदर हम फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स देखें तो कुड बी अ यूजर शैल बी एबल टू सर्च द appointments list for all clinics. The system shall generate each day for each clinic a list of patients who are expected to attend appointments that day. uh, what you want to see from this is कि इनको बहुत स्पेसिफिक होना चाहिए. अभी हम इनको, ये जो टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है इसको भी लेके आप ब्रेक डाउन कर सकते हो और आप कह सकते हो कि आई एम एबल टू पिक अप सम एम्बिग्यूटी इन दिस. सो आपने मेक श्योर करना है. सो एज एन एक्सरसाइज वी विल डू अ कपल ऑफ एग्जांपल्स जहाँ पर हम देखेंगे कि ये
स्पेसिफिक इनफ लिखी हुई है, या कैन आई थिंक ऑफ सम एम्बिग्युइटी जो इसके अंदर से क्रिएट हो रही है? एंड सेकंड थिंग यू वांट टू काइंड ऑफ नोट इज द फॉर्मेट इन विच दीज आर रिटन। सो वो शैल स्टेटमेंट्स का बार बार जो कहा जाता है, वो इसको कहा जा रहा होता है कि आप शैल के फॉर्म के अंदर अपना स्टेटमेंट लिख रहे हो, तो दैट इज व्हाट इज formally used in your requirement engineering. So for the ment care system, this would be a functional, or these three would be functional requirements. Uh, as an example of for the case study that we're dragging along with this, we could say, okay, what was the stated functional requirement for Pokemon Go versus the hidden one? So अभी हम functional की बात कर रहे हैं, अभी हम non-functional की बात नहीं कर रहे. But if I just say, okay, what was the stated functional requirement for Pokemon Go versus the hidden one, so this could be one of the questions that could be that I could be asking. और उसके ऊपर then you would say कि स्टेटेड फंक्शनल रिक्वायरमेंट ये थी कि प्लेयर ने पोकीमॉन कैच करने, और फिर उसके सारे के सारे डिटेल्स के क्या क्या प्लेयर ऐसे करेगा, प्लेयर बॉल पिक करेगा, प्लेयर पोकीमॉन पिक करेगा, प्लेयर टारगेट करेगा और उसको उठाएगा, तो वो सारी की सारी डिटेल उसके अंदर आ जाएगी. और उसके अलावा हिडन वन वुड बी, एंड दिस वुड बी रिक्वायर्ड फॉर द इंजीनियर्स, कि वो सारा का सारा डेटा जो है वो किस तरीके से आपने collect करना है. How are you going to collect all of the data? Data again, data coming in. If I go into like the case study again, data के अंदर so ये functional requirement. For example, if I go into a specific detail, Pokemon कैच करना है, लेकिन उसके अलावा टास्क्स मिलती हैं प्लेयर्स को, जिसके अंदर they are supposed to take a picture of their Pokemon in the actual environment. So every time a player is taking a picture of the Pokemon in the actual environment, प्लेयर के हिसाब से तो वो प्लेयर टास्क हो गया. सो दैट इज योर स्टेटेड फंक्शनल रिक्वायरमेंट. लेकिन हिडन वन वाज कि जब वो प्लेयर वो पिकअप करेगा पिक्चर, तो उसको वो किसी सिस्टमैटिक डेटाबेस के अंदर डाल रहे होंगे, कि वो उसकी जीपीएस लोकेशन के साथ कोरिलेट करके वो वाले पिक्चर्स सारे के सारे स्टोर कर रहे होंगे, ताकि इवेंचुअली ये सारी की सारी जो उनका डेटा कंस्ट्रक्ट हुआ है वो किसी और सिस्टम के अंदर फिर फीड हो सके. सो देयर वाज अ स्टेटेड और एक्सप्लिसिट, लेट मी यूज बेटर वर्डिंग, एक्सप्लिसिट फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या ये थे? इसमें इसमें पास भी आपको जीरो है, उसने कल दाल पकड़ा पट्टी से 1503 साल मैंने पकड़ा हुआ है। पट्टी को वापस करने हैं। अपने आप को म्यूट कर लें, मोहम्मद एहसान. So I'm going to say explicit functional, I've just changed my slide. Explicit functional requirement for Pokemon Go versus the hidden one. Stated मैं इसलिए नहीं कर रही because I'm going to pick this up into your NFR example as well. So explicit functional requirement for Pokemon Go versus the hidden one. अच्छा, रिक्वायरमेंट्स के अंदर अगेन इम्प्रिसिजन से क्या प्रॉब्लम होता है? वी कैन काइंड ऑफ वेल इमेजिन कि प्रॉब्लम क्या हो सकता है. ambiguous requirements may be interpreted in different ways by developers and users. इसके ऊपर भी हम एट लेंथ डिस्कशन कर चुके हैं, हायर लेवल के ऊपर हम हर चीज़ के ऊपर डिस्कशन कर चुके थे. बट बेसिकली इस वक्त जो रिक्वायरमेंट वन पढ़ी थी आपने ना, यहाँ पर जो लिखी हुई थी, फॉर एग्जाम्पल ये एक्चुअली लिखी हुई है, इसके नीचे ही लिखी हुई है. सो कंसिडर द टर्म सर्च रिटन इन रिक्वायरमेंट वन, जो मैंने अभी पढ़ते हुए आपको कहा था कि ये लिखी हुई है, बट मे बी वी कैन स्टिल काइंड ऑफ फिगर आउट कि इसके दो इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं. तो देन वी वुड से कि इसको इम्प्रूव करके लिखें. तो आपकी एक रिक्वायरमेंट में लिखा हुआ था सर्च. जब आप यूजर के पर्सपेक्टिव से देखो, तो सर्च का मतलब, सर्च क्योंकि आपने स्पेसिफाई नहीं की हुई किस किस्म की सर्च है, तो ये हो सकता है कि यूजर का इंटेंशन डिफरेंट हो. फॉर एग्जाम्पल, यूजर का मतलब सर्च से ये हो सकता है कि सर्च फॉर पेशेंट नेम अक्रॉस ऑल अपॉइंटमेंट्स इन ऑल क्लिनिक्स. और डेवलपर का इंटरप्रिटेशन, जब वो रिक्वायरमेंट्स उसको पास ऑन की जाती हैं, तो वो हो सकता है कि डेवलपर सोचे कि अच्छा लिखा हुआ है सर्च, let me imagine what search means, and then they imagine कि search for a patient name in an individual clinic, not in all clinics. तो इस किस्म की अगर आपके पास slightly ambiguous level के ऊपर अगर आपकी requirement रह गई है, तो you need to make sure that you, okay, I will go back to it. Let me just complete this. ये इस वक्त ये explicit, so also these terms that I use, these are like, this is basically I'm connecting it to a particular use case.
सो यू के नॉट से कि आपको ये हर सॉफ्टवेयर के अंदर मिल जाएगी, लेकिन इस पर्टिकुलर यूज केस के अंदर वी वी डू हैव अ वेरी ऑब्वियस open intention, and then not obvious at all secondary intention, not obvious at all for your users secondary intention as well. Let me go back to the slide, लेकिन इसको completely break down कर लेते हैं. This is kind of a simpler concept कि for instance आपने अपने रिक्वायरमेंट के अंदर सर्च का वर्ड यूज किया हुआ है, तो फिर सर्च का वर्ड मल्टीपल तरीके से इंटरप्रेट हो सकता है. सो यू नीड टू मेक श्योर कि उसको करेक्ट या बेहतर करेक्ट वाली जगह के ऊपर बेहतर लेवल से ले जाने के लिए आपको ये करना पड़ेगा कि सर्च को स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि व्हेन आई से सर्च व्हाट डू आई मीन द फर्स्ट ऑप्शन और डू आई नीड मीन द second option, which is going to prevent my प्रोजेक्ट एंडिंग अप इन अ सिचुएशन जहां पर यूजर डॉक्यूमेंट में ये लिखा हुआ है, यूजर उसको पढ़े और कहे कि ओके यूजर ने ये लिखा हुआ है, और फिर डेवलपर इसी को पढ़ के ये वाली इंटरप्रिटेशन उसकी बनाए, एंड देन यू डिलीवर द प्रोडक्ट एंड इट इज नॉट व्हाट वाज एक्चुअली इंटेंडेड. सो यू वुड वांट टू स्पेसिफिकली से कि सर्च जब मैं कह रही हूँ तो सर्च बहुत सारे तरीकों की हो सकती है. तो व्हाट डू आई वांट टू एक्चुअली डू विद इट. तो इफ आई गो बैक टू द क्वेश्चन, तो यहाँ पर केस स्टडी के हिसाब से आई पुट इन अ क्वेश्चन, आई पुट इन एन एग्जाम्पल क्वेश्चन दैट यू वुड पुट इन योर, I could put in a quiz कि what was the explicit functional requirement for Pokemon Go versus the hidden one. तो explicit ये थी, on the face of it it is a game जिसके अंदर प्लेयर्स अपनी फिजिकल लोकेशन के हिसाब से अपने इन्वायरमेंट के अंदर से पोकेमॉन कैरेक्टर्स को ढूंढ के कैच करके अपने कलेक्शन के अंदर ऐड करते थे. दैट इज योर एक्सप्लिसिट फंक्शनल रिक्वायरमेंट. डेवलपर्स के लिए भी ये एक्सप्लिसिट फंक्शनल रिक्वायरमेंट है, और उनको पता है कि हमने किसी ना किसी तरीके से यूजर्स को तरीका दे को ये गेम का फैसिलिटी देना है कि उसको वो पोकेमॉन चेक कर सके कि उसके अराउंड कोई है या नहीं, और फिर वो पोकेमॉन कैच कर सके, वो अपना वो टारगेट के ऊपर अपनी बॉल को सेंड कर सके एंड सो ऑन. और फिर अगर वो इस्केप कर जाए तो वो दो ट्राई ले सके या तीसरी ट्राई ले सके या वट एवर ऑप्शन दैट आर इन द गेम. सो ये आपका एक्सप्लिसिट फंक्शनल रिक्वायरमेंट हो गया. ये सबको पता है, ये आपके यूजर्स को भी पता है, ये आपके डेवलपर्स को भी पता है. ये नहीं पता हो तो आपका ऐप बेसिकली बन ही नहीं सकता. हिडन वन ओवर हेयर वाज कि जब आपके प्लेयर्स कुछ चीजें कर, अच्छा सो इस कॉन्ट्रास्ट के लिए, तो इसका हिडन गेम में जो हिडन एंगल था वो ये था कि एवरी टाइम योर प्लेयर्स आर एक्चुअली इंटरेक्टिंग विद द एनवायरनमेंट. तो उनको काफी दफा तो शुरू के अंदर तो लोग वैसे ही कर रहे होते थे बिकॉज ऑगमेंटेड रियलिटी वाज अ न्यू थिंग एंड स्टिल इज. वो एक्साइटिंग होने के लिहाज से स्टिल इट वाज एन एक्साइटिंग फीचर वेयर यू कुड एक्चुअली switch into the augmented reality view of the game and you could see a Pokemon. Let's say अगर मैं फोन में से देखूं तो you could see it in sitting in your room. एंड इन केस अगर आप लोगों ने नहीं ट्राई आउट किया हुआ, जस्ट ट्राई इट आउट. दिस इज बेसिकली लाइक काइंड ऑफ हाउ यू हैव योर फिल्टर्स ऑन योर एप्स, बट दिस इज लाइक अ पोकेमॉन अपेयरिंग इन योर स्पेस. सो ट्राई इट आउट इफ यू हैवंट ट्राइड इट आउट बिकॉज वो मेरे एक्सप्लेन करने से नहीं समझ आ रहा होगा, बट बेसिकली यू कैन सी योर पोकीमॉन्स इन योर एनवायरनमेंट. सो काफी लोग तो वैसे ही कर रहे होते थे इसको जस्ट टू काइंड ऑफ कम अप विद क्यूट पिक्चर्स, लेकिन उसके अलावा गेम के अंदर टास्क्स होती थी प्लेयर के लिए, होती हैं. सो अगेन यू कैन ट्राई इट आउट इफ यू हैवंट. टास्क्स होती हैं कि वो किसी पर्टिकुलर जगह के ऊपर जाके, किसी लैंडमार्क के ऊपर जाके तस्वीर ले. सो व्हेन पीपल वर गोइंग टू लैंडमार्क्स एंड टेकिंग पिक्चर्स, तो आपका सेकेंडरी, आपका हिडन फंक्शनल रिक्वायरमेंट जो कि यूजर के लिए बहुत ऑब्वियस नहीं था और यूजर सोचता भी नहीं था उसके बारे में, लेकिन आपके डेवलपर्स को चाहिए था बिकॉज एवरी टाइम समबडी वाज टेकिंग अ पिक्चर, उस पिक्चर का मकसद सिर्फ ये नहीं था, एक तो वो प्लेयर के एल्बम में चली गई ना फॉर लाइक अ क्यूट रिकॉर्ड ऑफ वट एवर दे डेड. सो प्लेयर ने अपने लिए किया. दूसरी चीज है प्लेयर ने अपनी टास्क कंप्लीट करने के लिए ताकि उसको पॉइंट ज्यादा मिल जाए, उसने एक और काम किया तो उसके पॉइंट्स बढ़ गए, वो यूजर का एस्पेक्ट. बट द थिंग वाज कि वो पिक्चर्स थ्रो नहीं हो रही थी, वो पिक्चर्स स्टोर हो रही थी ताकि वो डेटा इस्तेमाल हो सके एक बहुत मोर प्रिसाइज देन जीपीएस, और जीपीएस वाली नेविगेशन को और इम्प्रूव करने के लिए, ताकि ड्रोन डिलीवरी जो है वो बहुत स्पेसिफिक जगह के ऊपर जाके अपना फूड पैकेज ड्रॉप कर सके. तो वो वाली चीज़ इम्प्रूव करने के लिए
Basically Niantic has like a bigger database than anybody else in the world right now to actually be able to do that. और उन्होंने वो सारी तस्वीरें इस्तेमाल करके एक डेटाबेस कलेक्ट किया है, जिससे आपकी ड्रोन डिलीवरी सिस्टम्स जो हैं वो बहुत प्रिसिजन से डिलीवरीज ड्रॉप कर सकेंगे पर्टिकुलर घरों के ऊपर. एंड दैट इज ओनली पॉसिबल बिकॉज दे वर कलेक्टिंग ऑल ऑफ दैट डेटा सिस्टमैटिकली. सो जो हिडन वाला रिक्वायरमेंट है उसके अंदर, जो कि प्लेयर्स के लिए बिल्कुल भी काइंड ऑफ उसके बारे में बात हुई भी नहीं थी, और नहीं भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था. बट दैट वाज अ हिडन रिक्वायरमेंट कि वेन एवर दैट डेटा इज कमिंग इन, तो उसको सिस्टमैटिकली कलेक्ट करते रहें, ताकि इवेंचुअली हमें किसी और इस तरह के सिस्टम के लिए इस्तेमाल करनी पड़े जिस तरह के सिस्टम के लिए अब इस्तेमाल हो रही है, तो वी कैन एक्चुअली यूज दैट. सो this is the comparison between your explicit and your hidden uh, kind of functional requirement. एक एक एग्जांपल मैं और एग्जांपल के साथ लिंक करके कवर करना चाहती हूँ. सो लेट मी काइंड ऑफ गेट टू दैट, ताकि हमारा फर्स्ट फेज ऑफ रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग कवर हो जाए. सो एम्बिग्युइटी इन रिक्वायरमेंट्स, उसके बाद रिक्वायरमेंट्स कंप्लीटनेस एंड कंसिस्टेंसी. तो कंप्लीट होनी चाहिए, ऑब्वियसली कंप्लीट नहीं होगी तो यू आर गोइंग टू हैव इश्यूज. सेकेंड थिंग जो आपको बड़ी केयरफुली देखना पड़ेगा अगर आप बहुत सिस्टमैटिक रिक्वायरमेंट्स ले रहे हो, यू विल हैव टू काइंड ऑफ मेक श्योर, यू विल हैव टू बी वेरी श्योर कि आपके पास कोई कॉन्फ्लिक्ट्स या कॉन्ट्रोडिक्शंस नहीं आ रही डिफरेंट किस्म के रिक्वायरमेंट्स के अंदर. और थोड़ा ये टीडियस प्रोसेस होता है, तो इट इज़ वेरी लाइकली कि आपकी कोई कॉन्ट्रडिक्शंस आ गई हैं. सो इट हैज़ टू बी एन ऑन गोइंग प्रोसेस कि आप अपने रिक्वायरमेंट्स को देखते रहो और मेक श्योर करते रहो कि आप आपका अपने डॉक्यूमेंट को इस तरीके से मेंटेन कर रहे हो कि आप ट्रेस कर सको कि ये प्रॉब्लम आ गई थी, हमने इसको इस तरीके से सॉल्व किया था. So in practice, because of system and environmental complexity, it is possible to produce a complete and consistent requirements document. It is impossible to produce a complete and consistent requirements document, but उसका मतलब ये नहीं है कि काफ़ी सारे situations हैं कि हमें फिर भी ट्राई करना पड़ता है, बिकॉज देर आर सिचुएशंस जहाँ पर आप ये नहीं कह सकते कि लेट्स डू अ completely agile process and let's not get into rigorous documentation. सो नॉन फंक्शनल, सो मेन रिक्वायरमेंट्स के अंदर तो दीज आर द थिंग्स जो पिछली स्लाइड पे लिखी हुई थी दैट वी नीड टू बी केयरफुल अबाउट. नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के अंदर दीज डिफाइन सिस्टम प्रॉपर्टीज एंड कंस्ट्रेंट्स, मैंने इनकी बात की थी. सो फॉर इंस्टेंस रिलायबिलिटी, सर्वर डाउन नहीं होना चाहिए. मैक्सिमम सर्वर अगर डाउन होना है तो वो इतने टाइम का हो सकता है, और यू कुड से मैक्सिमम सर्वर डाउन होना है तो वो हम रात को डाउन होना अफोर्ड कर सकते हैं, दिन के वक्त नहीं कर सकते. इस किस्म की अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट हो. रिस्पॉन्स टाइम, स्टोरेज रिक्वायरमेंट्स, आपकी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की कैपेबिलिटी, आपकी सिस्टम रिप्रेजेंटेशंस एक्सेट्रा, इस किस्म की कोई भी चीज़ हो सकती है. प्रोसेस रिक्वायरमेंट के अंदर कोई, इधर इन्होंने एग्जांपल दिया हुआ है कि इट कुड बी कि आपने मैंडेट किया हुआ है कि विजुअल स्टूडियो के अंदर ही ये करना है, इस तरह की चीज़, या इसी लैंग्वेज के अंदर करनी है, या यही वाला डेवलपमेंट मेथड ही इस्तेमाल करना है आपने इसको डेवलप करते हुए. और इट कुड बी समथिंग एज सिंपल एज के मेरा बजट कम है, सो आई वांट कि इसके अंदर के से 4 कंपोनेंट्स जो हैं वो आप ओपन सोर्स ऑप्शंस के अंदर से निकालें. सो वी वांट टू यूज फ्री एंड ओपन सोर्स ऑप्शंस फॉर सम पर्टिकुलर elements in this product. So your, so again, conceptually for you to remember, मैंने कहा था कि पहली चीज आप सोचते हो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, फिर आप सोचते हो नॉन फंक्शनल. बट दैट इज नॉट टू से कि नॉन फंक्शनल जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है. यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन फैक्ट your non-functional requirements may be more critical than functional requirement, because if these are not met the system may be useless. So अगर वो रिस्पॉन्ड आपका सिस्टम, एक ये बहुत इजी एग्जांपल है बिकॉज यू कैन थिंक अबाउट इट इमीडिएटली, कि आपका कोई भी सिस्टम है वो बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन अगर वो आपको depending on the situation, if it is giving you like 10 seconds to do the response or it is taking you 1 minute to give the response, you're going to, your users are not going to be able to use it. अगर आपने कहा हुआ है कि ये ऐसा सिस्टम है जिसको फौरी तौर के ऊपर रिस्पॉन्ड करना है, और आप उस नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट को नहीं मीट कर सके, और बाकी आपके बहुत अच्छे एल्गोरिदम्स हैं और आपने बहुत अच्छा यूआई क्रिएट किया हुआ है, तो यू आर गोइंग टू हैव इश्यूज देन विद मेकिंग श्योर कि आपकी ऐप जो है वो एक्चुअली इस्तेमाल हो रही है या नहीं हो रही. So non-functional requirements जो हैं, it can be a huge number of these.
यूजेबिलिटी रिक्वायर, बहुत सारी जो हम सोचते हैं वो यूजेबिलिटी वाली भी सोच सकते हैं. द एग्जांपल्स दैट यू कैन थिंक ऑफ इजीली, यूजेबिलिटी रिक्वायरमेंट्स कुड बी कि मेरे जो यूजर्स हैं, वन सिंपल वन कुड बी, मेरे यूजर्स जो हैं वो उनका दे नीड समथिंग जिसके अंदर बहुत ज़्यादा टेक्स्ट से एक्सप्लेनेशन नहीं हुई हो, उनको ज़्यादा विजुअल इंटरफेस चाहिए. तो सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो मेक श्योर के पढ़ने की ज़रूरत नहीं हो, पढ़ने की एबिलिटी की ज़रूरत नहीं हो आपकी ऐप इस्तेमाल करने के लिए. वो वैसे ही आइकॉन्स वगैरह के इस्तेमाल से अपना यूज़ जो है वो कम्युनिकेट कर सके. एक दो और एग्जांपल्स अगर मैं इसके अंदर से रैंडमली पिक कर लूं, इफ देर इज समथिंग दैट इज नॉट मेकिंग सेंस फ्रॉम ऑल ऑफ दीज, मुझसे आप पूछ लें, बट आई थिंक कि दीज आर लाइक, यू आई विल गिव यू सम एग्जांपल्स. रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स वुड बी, अभी मैंने एग्जांपल दिया था कि फॉर इंस्टेंस ईयू के अंदर यूजर्स के डेटा इस्तेमाल करने के ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस आ गई हैं. So all of these companies now have to be really really careful. और if you are making a software और वो आपके users जो हैं वो यूरोप के अंदर हैं, जहाँ पर इट इज़ अ नोन प्लेस जहाँ पर डेटा का सिक्योरिटी का ज़्यादा ख्याल रखा जा रहा है, तो यू विल नीड टू मेक श्योर कि मेरा डेटा जो है वो इस तरीके से सिक्योर हो, मेरा डेटा अक्रॉस यूजर्स नहीं शेयर हो रहा, मेरा डेटा जो है वो पब्लिकली नहीं शेयर हो रहा, मैंने इस्तेमाल भी नहीं करना. सो समथिंग जो कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम फॉर इंस्टेंस पोकेमोन गो, बिकॉज दे डिड नॉट डिस्क्लोज, तो वो वाली चीज़ जो है वो वहाँ पर इशू क्रिएट कर सकती है. सो यू नीड टू लुक एट कि आप किस जगह के ऊपर अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रहे हो या ग्लोबली करना चाह रहे हो, तो फिर मेक श्योर कि वो जिस जिस जगह के ऊपर कोई इशू का अराइज करने का चांस है, तो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स का भी ख्याल रखना जो है वो एक नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट के अंदर आ सकता है. उसके अलावा डिपेंडेबिलिटी रिक्वायरमेंट्स कि मैं एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर, या हो सकता है मैं किसी और सिस्टम के ऊपर डिपेंड कर रही हूँ कि मेरा डेटा किसी गवर्नमेंट सिस्टम से आना है, या मेरा डेटा जो आना है वो किसी सेंट्रल सिस्टम से आना है जो मैंने इस्तेमाल करना है. सो मेरी कोई डिपेंडेबिलिटी रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं मेरे सॉफ्टवेयर के हिसाब से, नॉट डेटा बट सॉफ्टवेयर के लिहाज से डिपेंडेबिलिटी रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं. एंड दिस आई नीड टू फिगर आउट बिफोर आई गेट अप एंड रनिंग विद माई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट. बिकॉज अगर वो मैंने छोड़ दी, मैंने पूरा का पूरा प्रोडक्ट बना लिया और मुझे पता चला कि मेरी टारगेट ऑडियंस में इस किस्म का डेटा शेयरिंग एक्सेप्टेबल ही नहीं है, इलीगल हो गया बेसिकली, तो फिर मैं आई एम लाइक काइंड ऑफ आई वेस्टेड एवरीथिंग इनटू क्रिएटिंग दैट सॉफ्टवेयर. सो ये नॉन फंक्शनल है बट दे आर इक्वली एंड समटाइम्स मोर क्रिटिकल. सो वो आपके फॉर इंस्टेंस पूरे के पूरे सिस्टम के आर्किटेक्चर को इम्पैक्ट कर सकते हैं. आर्किटेक्चर की हमने बात थॉरली इन मल्टीपल लेक्चर्स लेटर करनी है, सो विल कम टू आर्किटेक्चर के एग्जांपल्स लेटर. बट आर्किटेक्चर के इश्यूज हो सकते हैं, एंड अ सिंगल नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट सच एज अ सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट मे generate a number of related functional requirements that define system services that are required. So आपकी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट के अंदर से फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स इनडायरेक्टली जनरेट भी हो सकती हैं. सो यू वांट टू मेक श्योर दैट यू आर पेइंग प्रॉपर अटेंशन टू दीज, इवन दो कि वो लिस्ट के अंदर लग रहा है कि वो सेकेंडरी चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है. थोड़ा सा आई गिव यू काइंड ऑफ द FIP परस्पेक्टिव. देर इज़ अ बिग टेंडेंसी फॉर स्टूडेंट्स जब वो अपना रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंट बनाते हैं, और एक्चुअली ये अभी आप लोग अपने इस कोर्स के प्रोजेक्ट के लिए भी आप लोगों को ये टास्क मिलेगा, सो कीप इन माइंड, डू नॉट डू दिस के फंक्शनल रिक्वायरमेंट के ऊपर सारा टाइम आपने लगा दिया, और डू नॉट देन डू दिस के कैन एवरीबडी जस्ट टाइप इन प्रेजेंट इन द चैट, ताकि अगर ये बंद हो गया तो मैं वहां से पिकअप कर लूंगी सारी की सारी अटेंडेंस, बिकॉज दिस इज सेइंग कि 10 मिनट्स में ये फिर बंद हो जाएगा. सो जस्ट टाइप इन प्रेजेंट इन चैट, वहां से मुझे अटेंडेंस मिल जाएगी. सो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स यू आर गोइंग टू मेक श्योर के आपने प्रॉपर तरीके से की हुई है, और आपने ये नहीं किया हुआ कि फॉर योर FIB डॉक्यूमेंट और फॉर योर कोर्स प्रोजेक्ट दिस टर्म, डू नॉट डू दिस कि आपने सारे के सारे फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के ऊपर फोकस कर दिया, और फिर जब आपने सोचा है कि अब मैंने NFRs लिखने हैं, तो यू जस्ट ओपन अप लाइक द टेक्स्ट बुक एंड से कि अच्छा दो सिक्योरिटी की लिख दें, दो ये वाली लिख दें, दो ये वाली लिख दें. एक्चुअली थिंक अबाउट के आपने नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में क्या करना है, बिकॉज इट्स नॉट समथिंग कि जो आपने बस सेक्शन फिलअप करना है. इट इज़ अ क्रिटिकल पार्ट ऑफ योर सिस्टम जिसको आपने थॉटफुली करना है. आपने ये नहीं करना कि ये वाली लिस्ट खोलो और बस सोचते जाओ कि
एक हार्डवेयर वाली सोच लो और एक रिस्पॉन्स वाली सोच लो और एक ये वाली सोच लो और जबरदस्ती सारी की सारी डाल दो। इट डज, आई एम नॉट आस्किंग, और इवन इन योर FYP वी आर नॉट आस्किंग कि आप 20 NFRs लिस्ट कर दो, बट पुट इन NFRs दैट आर एक्चुअली गोइंग टू इम्पैक्ट योर सिस्टम। सो ये उसके एग्जांपल्स एक्चुअली दिए हुए हैं, बट व्हाट द क्वेश्चन दैट आई वांट टू आस्क, or that I could stick into a quiz with a case study. Might be I might give you another case study now. I won't give you this one. लेकिन ये वाला इसलिए दिया so that I can walk you through a case study along with a textbook example to see के मैं किस किस्म से आपको अपने आंसर को वर्कआउट करने के लिए चाह रही हूँ. So one a question over here would be कि व्हाट इज वन NFR, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट NFR करके भी इस्तेमाल किया के एक्रोनिम से कॉमनली रेफर की जाती है. व्हाट इज वन NFR that Niantic should have stated in 2016 that would have forced them to disclose the mapping use case to players. So I'm going to let me just give you the answer, but kind of think of it for 1 second. ये वाला क्वेश्चन काइंड ऑफ इफ आई गिव यू, अगर जितना कॉन्टेक्स्ट अभी हमने लेक्चर में कवर कर लिया अगर वो आपके पास है ना, यू शुड बी एबल टू कम अप विद मे बी नॉट एग्जैक्टली व्हाट आई हैव रिटन इन माय नेक्स्ट स्लाइड, बट समथिंग क्लोज टू दैट. आई डोंट वांट एग्जैक्टली जो मैं सोच रही हूँ कि एग्जैक्टली आप वही चीज़ प्रोड्यूस कर सको, बट लैंड समवेयर क्लोज टू दैट सो दैट आई कैन सी दैट यू आर एटलीस्ट following the link that is existing between something that is happening in a real world situation to what is being stated in your textbook. So what would be one NFR that Niantic should have stated? वो ये हो सकता है. So NFR है not a functional requirement, that this is an NFR which is, उसको आप external की कैटेगरी में डाल दो, legal की कैटेगरी में डाल दो. Another example of कि again I am not, और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर भी या किसी भी प्रैक्टिकल सिस्टम के अंदर आपको इतना करेक्ट होने की जरूरत नहीं होती कि एक्सटर्नल कैटेगरी मैंने गलत लिख दी है तो देयर इज एन इशू. अगर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है तो यू कैन गिव इट सम कैटेगरी दैट मेक सेंस. सो यू कुड से कि ये एक्सटर्नल NFR है, यू कुड से ये लीगल NFR है, बट द NFR itself is the system shall display to users, so shall statement shall display to users at registration and upon any material change of use a plain language description. So plain language से कवर हो रहा है कि इवन आपके ऑर्डिनरी यूजर को भी समझ आ जाएगा कि मेरा डेटा इस तरीके, दे डिड नॉट डू दिस, बट अगर ये होता तो उनको आसानी से समझ आ जाता कि प्लेन लैंग्वेज डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल डेटा कलेक्टेड वाया द कैमरा एंड द AR फीचर्स इंक्लूडिंग एनी थर्ड पार्टी और फ्यूचर कमर्शियल एप्लीकेशंस ऑफ दैट डेटा, यूजर कंसेंट शैल बी ऑब्टेन्ड बिफोर डेटा कलेक्शन बिगिंस. अब इसकी वो कोई वेग सी स्टेटमेंट वो प्रोबेबली अभी भी लिखते हैं, बट दे प्रोबेबली स्टिक इट इनटू अ जाइगेंटिक काइंड ऑफ अ लीगल नोटिस जो कि लोग नहीं पढ़ते और उसको स्किप कर जाते हैं. बट यहाँ पर वो चीज़ कवर हो रही है कि प्लेन लैंग्वेज में लिखें, एंड मे बी यू कुड इम्प्रूव इट कि उसको मेक श्योर करें कि यूजर्स इस चीज़ को समझ सकें कि व्हाट वी आर एक्चुअली डूइंग व्हेन वी आर कलेक्टिंग योर डेटा. सो अनदर ओपन क्वेश्चन वुड बी शुड दे हैव रिटन एंड इम्प्लीमेंटेड दिस. क्या इस अब दिस इज लाइक अ ह्यूजली, ये थोड़ा स्पेसिफिक क्वेश्चन है. तो इसके अंदर मैं चाहूंगी अगर इफ आई आस्क दिस आई वुड वांट यू टू कम अप विद समथिंग दैट इज अ लिटिल बिट कॉन्क्रीट. ये completely ओपन एंडेड है. इसके अंदर इन अ क्विज आई वुड बी, इनफैक्ट आई वुड वांट दैट यू सिट एंड थिंक कि इसके ऊपर क्या इसका, some students could say yes they should have written and implemented this, उसको बैक करें with some kind of a reasoning, and then some students can say कि नहीं उनको लिखना चाहिए था because यही तो उनकी kind of this was like their idea. So if they had revealed it at the time, तो वो basically they won't be in the position that they are right now. दूसरी साइड के ऊपर आप कह सकते हो कि that is extremely ethical, extremely unethical कि आप यूजर से डेटा इस तरीके से कलेक्ट कर रहे हो. So take you can take either side, just be able to justify your side completely. So you again इस जगह के ऊपर I don't want कि आप, there is no correct or incorrect answer here. What is going to be correct is कि आप इसको जस्ट अपनी चॉइस को पिक कर सको और किसी ना किसी तरीके से जस्टिफाई कर सको. दैट इज गोइंग टू बी इनफ फॉर दिस. तो यहाँ तक हम स्टॉप कर जाते हैं. लेट मी सी, ये कवर कर लेते हैं एक बार, बिग टॉपिक खत्म होने लगा. अच्छा सो
समटाइम्स योर एनएफ, सो गोल्स एंड रिक्वायरमेंट्स भी आपके पास गोल किस तरीके से होता है. सो समटाइम्स यू वांट टू आल्सो राइट योर गोल्स व्हिच इज अ जनरल इंटेंशन ऑफ द यूजर सच एज ईज ऑफ यूज. You are going to have verifiable non-functional requirements, so statement using some measure that can be objectively tested कि ये वाली रिक्वायरमेंट जो है वो कंप्लीट हो गई है. सो दिस शुड बी, यू शुड बी एबल टू डू दिस वेल. एंड अगेन यहाँ पर ना ये स्टेटमेंट्स ऐसे लिखी हुई है एकेडमिक की, एकेडमिक टर्म्स में लिखी हुई है कि दिस इज काइंड ऑफ लाइक मैथ्स, कि मैं एग्जैक्टली लिख दूंगी वो हो जाएगी. मोस्ट केसेस के अंदर मैथ्स वाले और हम इस कोर्स में तो हम मैथ्स वाले लेवल के ऊपर नहीं गए. सो लॉट ऑफ द टाइम्स आपकी रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग में काम ही ये हो रहा होता है कि इसको बहुत फाइन ग्रेन्ड आई से देखो किसी तरीके से, कि आपको पता चल जाए कि इसके अंदर कोई इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं या नहीं. इवेंचुअली नहीं अगर आपसे पकड़ा जा रहा तो इवेंचुअली फिर वो आपके प्रोडक्ट के रन करते हुए और फिर प्रॉब्लम क्रिएट करते हुए आपको पता चलेगा कि क्या हुआ. So you might, goal is an artifact that you might want to use in addition with requirements because they're helpful to developers as they convey the intentions of the system users. So higher level kind of statements जो कि you can kind of say if you want to link it. So जो आपने personas वगैरह पहले पढ़े थे तो वो भी बहुत प्रिसाइज चीज नहीं थी, लेकिन वो हेल्प करती थी आपको फिगर आउट करने में कि आपके सिस्टम ने क्या करना है. सो गोल इज ऑल्सो काइंड ऑफ ऑन द सेम लेवल. सो गोल का एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ है. And then over here we have again, agar this slide is going to come in handy, but I would hope that you don't use it like that. लेकिन जब आप अपने प्रोजेक्ट का नॉन फंक्शनल स्पेसिफिकेशन लिखने लगे हो तो स्पेक्स लिखने लगे हो तो ये एग्जांपल्स हैं जिनके हिसाब से आप मेजर लिख सकते हो. सो फॉर एग्जांपल अगर आपका रिलायबिलिटी का इशू है तो रिलायबिलिटी का एग्जांपल लिखने का तरीका ये है कि माय एवरेज टाइम टू फेलियर इज शुड बी दिस, माय प्रोबेबिलिटी ऑफ अनअवेलेबिलिटी इज गोइंग टू बी दिस, माय रेट ऑफ फेलियर अकरेंस इज गोइंग टू बी दिस एंड सो ऑन. सो अगर आपको हल्का सा आइडिया है ना कि मेरे इस किस्म के एनएफआरस हैं तो उनको स्पेसिफिकली लिखने के एग्जांपल्स जो हैं वो यहाँ पर दिए हुए हैं. So we're going to close off this section over here. I'm going to do the attendance. Since we're all here, I just get a quick response from everybody. We still have a minute to go, so minute में मैं कर लेती हूँ attendance, and we're going to be done with this. Abdul Hasib, Present, ma'am. Abdullah Amir, Abdullah Amir. Present, miss. Present. अगर आपने टेक्स्ट में डाला हुआ तो मैं एक दफ़ा चेक कर लूंगी बाद में, तो मेक श्योर कि टेक्स्ट में भी डाल दिया. अब्दुल रहीम काशिफ, मिस टेस्ट पे डाल दिया, टेस्ट पे भी अहमद डाला हुआ. जी, ठीक है, सही है. अहमद अब्दुल्ला, Present, ma'am. अहमद हम्बल. मीटिंग ड्रॉप हो जाएगी लाइक इन अ फ्यू सेकंड्स, बट इन एनी केस एमन, Present. अरूज फातिमा, असद अली, दानियाल नवाज, Present, miss. Present. इज़ा अली, ईमान आमिर, काशिफ हुसैन, Present, miss. मलीहा फातिमा, मलिक मोहम्मद उजैर. Miss present. Miss Maliha Fatima present. मलीहा का प्रेजेंट है.